Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोटि अपारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। Every year for the past 107 years, Dao village in California, central Trinidad, has celebrated a Ram Leela. The Ram Leela is a play which depicts the events recounted in the Hindu classic, the Holy Ramayana. On the communally owned Ram Leela ground, for 2 hours over 11 evenings, the adventures of Rama and Sita, which have thrilled countless generations, are reenacted by the villagers. For a short while,
everyday existence is put aside and the legendary characters of the Ramayana come to life. This year, Rama is played by Krishnanath Mangru, Sita by Reshma Singh, Lakshmana by Kimraj Maharaj, Ravan by Frankie Baldev, and Hanuman is played by Krishna Ramesa. Also featured in many parts are Sharif Ali and Bharat Siu. After the wedding, Sita took leave of her tearful father, King Janak, to return with Ram, King Dasrath, and the rest of the court to the city of Ayodhya. When they arrived at Ayodhya, they were greeted by Queens Kausalya, Kekeyi, and Sumitra. What a happy occasion it was for the city of Ayodhya to welcome the return of its king Dasrath, his sons, and the beautiful bride of Ram. King Dasrath, being an old man, decided one day that he would crown his son Ram king of Ayodhya. King Dasrath, you could have never made a better choice. I think Ram is the most suitable person to rule this kingdom. The maidservant Mantra overheard the king discussing his decision with his counselors, and she plotted against the king. She went to the Queen Kausalya. Oh, Queen! Where have you been all this time? There's a real trouble in Ayodhya, you know. You know what happened? Me and you. Oh, before here, we got killed. There's trouble, real trouble in Ayodhya. What kind of trouble? What kind of trouble? If I tell you it, you know that is real destruction for your window. It's a flood of misfortune going to come upon us, and nobody will help us again, you know. It's real trouble, I tell you that. Mantra told Queen Kekeyi that King Dasrath planned to crown Ram, son of Queen Kausalya, king of Ayodhya. She influenced Queen Kekeyi to see that her son Bharath be appointed king instead of Ram. She reminded Kekeyi of the two wishes King Dasrath had once promised to grant Queen Kekeyi. She suggested that Kekeyi now ask the king to grant her the two wishes. You remember when I was young and nice, and you like me plenty, and you say that anything I want, you promise me to give. Well, now I want me to give for you promise me. Well, what is your gift? Tell me. You get frightened when I ask you, I know. Oh, darling, how could I get frightened? Because if you are going to ask, I know you are going to tell me no. And you know what I want you to do? I want you to make Bharat king of Ayodhya, and I want you, the next one, to send Rama into ban for 14 years. When King Dasrath heard the two wishes, he was deeply hurt. And he said, "O my queen, you could have asked for riches. You could have asked for the kingdom. But why ask to send my beloved Ram to the forest for 14 years? King Dasrath was so heartbroken, he fell ill. Ram, with Sita and Lakshman, came to see him as he lay sad of heart. निधरक बैठिक है कटुबाने सुनत कठिनता अति कुलाने. When Ram heard what his father the king had to say,
he turned to Keiki and said, "Mother, you could have asked me to go to the forest without claiming the promised boons and causing distress to my father. I would gladly obey you in order to fulfill those wishes." Keiki stood up and told Ram that he must go to the forest without any jewelry, without any crown, and she gave to him simple clothes of bark. Ram took them gladly in order to fulfill those wishes to his father, King Dashrath. जभेया कमानब जन शरणाना मनहु महिप मृदु लक्ष्य. His brother Lakshman and his wife Sita approached Ram. Lakshman said, "O brother, without you in this kingdom, we are no one. Therefore I, Lakshman, and Sita, your wedded wife, will also go into the forest for 14 years. What a sorrowful occasion it was in the city of Ayodhya. After to be crowned the king of Ayodhya, today the Lord Sri Ram is leaving his kingdom and going to that forest for 14 years. श्रोतागण, अभी कुछ क्षणों में आप देखेंगे कि रानी कैकेयी मंत्रा की बहकी बहकी बातों में आकर कैसे अपने पति राजा दशरथ जी से श्री राम को वनवास भेजने का निर्णय लेने पर विवश करती है. Lieve mensen, straks zult u zien hoe koningin Kekeyi in de woorden zal vallen van Mantra en koning Dashrath hulpeloos maakt om Shri Ram van Ayodhya koninkrijk te verbannen. केकई, ओ केकई, तुम यहां पर बैठी हो? ये क्या? तुम्हारे आभूषण पृथ्वी पर? ओह, लगता है मेरी प्रिय रानी रूठ गई है. रानी को तो मनाना ही पड़ेगा. अरे केकई, देखो, अयोध्या चारों ओर जगमगा रहा. प्रजा कितनी खुश और क्यों ना खुश हो. उनका सबसे प्रिय राजकुमार राजा बनने जा रहा है. मेरा राम राजा बनने जा रहा है केकई, और तुम इस आनंद के अवसर पर ये कुबेश, क्या तुम रूठ गई हो प्रिय? प्रिय 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 कहते आप मुझे, और हृदय से प्रेम करती है किसी और को. दिखावे के लिए सम्मान मेरा होता है और लाभ होते हैं किसी और की. परंतु बात आज तक तुम्हारी मैंने कौन सी पूरी नहीं की है? कहो.
मेरा अपराध? कौन सी बात मैंने पूरी नहीं की है? मौन क्यों हो? कहो। मेरा वर दिए। वर? दोनों वर? 2 वर? ओ तो इसलिए तुम रूठी हो? इतनी छोटी सी बात। 2 वर? 2 के बदले 4 मांग लो। सब कुछ तुम्हारा तो है। ठीक है, आज तुम जो चाहो मांग लो, हम आपको वही देंगे। अच्छा। अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाकर कहते हैं, आज रात तुम जो चाहो मांग लो कैकेयी, जो चाहो मांग लो। हम सूर्यवंशी, और तुम तो जानती हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो। अच्छा, तो सुनिए, आपसे मेरा पहला वरदान ये है कि राम के जगह मेरे पुत्र भरत के राज्य मिले। क्या? नहीं। हाँ महाराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। राम के बदले भरत को राज? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। हाँ महाराज, और मत भूलिए, आप वचन दिए हैं। ठीक है। और दूसरा वरदान क्या है? हाँ महाराज, दूसरा वरदान ये है कि राम के जगह मेरे पुत्र भरत के राज्य मिले। ऐसे है एक वरदान। और दूसरा वरदान के 14 वर्ष के लिए राम के वनवास। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे राम को वन मत भेजो। ये क्या नाटक कर रही हो कैकेयी? हाँ महाराज। राम में तो मेरे प्राण बसे हैं। मेरे राम को वन मत भेजो। भरत को राज देने की बात, और राम को वन मत भेजो कैकेयी। राम में मेरे प्राण बसे। राम में मेरे प्राण बसे। मेरे राम को वन मत भेजो। मेरे राम को वन मत भेजो कैकेयी। मेरा राम राजा बनेगा। उसके लिए फूल सजा रही हूँ। माँ प्रणाम। राम, तू यहाँ है? तेरे पिताजी यज्ञशाला में तेरी राह देख रहे होंगे। माँ, मैं पिताश्री से मिलकर के ही आपके पास आया हूँ। माँ, आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। जाने की आज्ञा? हाँ माँ, पिताश्री और माता कैकेयी ने मुझे
14 वर्ष वन जाने की आज्ञा दी है माँ। आपसे क्या वन? मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमको वन दे दिया? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। माँ, मुझे वन जाने में कोई कष्ट नहीं है। बस पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा, फिर जल्द ही लौट आऊंगा। माँ, आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। राज तिलक के बदले तुमको वनवास दे दिया? नहीं राम, तुम हमके छोड़ के नहीं जा सकते। राम, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये स्वामी ने कैसा अनर्थ कर दिया। नहीं, नहीं राम। लेकिन तुमने ये भी अच्छा किया राम। माता पिता की आज्ञा मानना पुत्र का प्रथम धर्म होता है। लेकिन राम, तुम जल्दी वापस आ जाना राम, जल्दी वापस आ जाना। माँ सीते, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, इसीलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। माँ, मैं अपने पति के साथ वन जा रही हूँ। माँ सीते, ये तुम क्या कह रही हो? तुमसे वन की कठिनाइयां नहीं सही जाएगी। सब कुछ सह लूंगी, पर आपके वियोग के पीड़ा मुझसे सही नहीं जाएगी। आपके दर्शन से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। आपके चरणों में बैठकर मैं अपना स्वर्ग बसा लूंगी स्वामी। और यदि माता कैकेयी ने कहा कि राम के साथ सीता का वन जाने से आज्ञा भंग होता है, तो तब तो मुझे अपने साथ वन अवश्य ले चलिए आर्य, नहीं तो माँ का वचन भंग होगा। माँ का वचन भंग होगा? कैसे? पत्नी पति का आधा शरीर होती है स्वामी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। क्या आप आधा शरीर आधे मन से मां की आज्ञा का पालन करेंगे? और फिर पति का साथ देना पत्नी का कर्तव्य है। अपने धर्म के साथ साथ मुझे भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने दीजिए आर्यपुत्र। ठीक कही। भैया, भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, भैया, भैया, मैं आपको वनवास जाने नहीं दूंगा। भैया, भैया, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं लक्ष्मण, मेरा वन जाना आवश्यक है। यदि आप वन जाएंगे तो आपकी सेवा करने के लिए मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भैया, लक्ष्मण, यदि तुम मेरे साथ गए तो माता कौशल्या की सेवा के लिए कौन रहेगा? नहीं 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 भैया, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं केवल आपका दास हूं। आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं जानता भैया, किसी को नहीं। इसलिए भैया मुझे वन जाने से ना रोकिए भैया, मुझे भी आपके साथ ले चलिए।
राम राम स्वामी राम स्वामी राम स्वामी हे कौशल्या, मैं राम के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। धैर्य रखिए स्वामी, धैर्य रखिए। ये 14 वर्ष जल्दी बीत जाएंगे। राम, लक्ष्मण और बहू सीता शीघ्र लौट आएंगे स्वामी, शीघ्र लौट आएंगे। ये कहना बहुत सहज है कौशल्या, परंतु मैं राम के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। लगता है मेरा निकट आ गया है। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। मैं सत्य कह रहा हूं। बात ये सब एक श्राप के कारण हो रहा है। श्राप? कैसा श्राप स्वामी? कौशल्या, बात उस समय की है। स्वामी, स्वामी, स्वामी। बात उस समय की है जब मैं अयोध्या का युवराज था। एक दिन शिकार करने के लिए मैं वन को गया। जिस वन में मैं था वहां एक नवयुवक श्रवण कुमार जो अपने कांधे पे कांवर लेकर चला, अब क्यों ना करूं मैं गुमान। एक पल रे में लक्ष्मी जी सोहे, दूजे में है भगवान। हो मेरे कांवर के भाग महान, हो मेरे कांवर के भाग महान। हो कांधे पे कांवर लेकर चला। पिता श्रवण, जी माता जी। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? माँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जल्दी आना बेटा। नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? आप कौन हैं? हे नुयक, मुझे क्षमा करो। मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हूँ। मैं तुम्हें एक जल पीता हुआ जानवर समझकर
शब्द मेरी बात चलाया, मुझे क्षमा करो। युवराज दशरथ, शोक मत करो। जो मैं कहता हूँ वह करो। मैं अपने अंधे माता पिता की सेवा में रात दिन तत्पर रहता हूँ। वे प्यासे थे, मैं जल भरने आया था, आपने मुझे बाण मारा। आप ये जल मेरे माता पिता को पिला देना और उनसे कह दें कि वे शोक मत करे। नहीं, मुझसे क्या अनर्थ हो गया? बेटा श्रवण, आ गए? इतनी देर कहाँ लगा दी? आपके सामने आपका पुत्र नहीं, अयोध्या का युवराज दशरथ करा है। मैं अपराधी हूं। मैंने आपके पुत्र को एक पशु समझकर उन पर बाण चलाया। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कीजिए। नहीं दशरथ, इस दुखियारी माँ का श्राप याद रख। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण दे दोगे। स्वामी। क्या हुआ ज्ञानवती? स्वामी, लगता है कि मेरा श्रवण मुझे बुला रहा है। तुम क्या कह रही हो ज्ञानवती? स्वामी, श्रवण, मेरा बेटा, मैं आ रही हूँ। ज्ञानवती, नहीं, युवराज दशरथ, आज तुम्हारे कारण मेरा पुत्र और मेरी पत्नी नहीं रहे। मेरी चिता देने को अग्नि के लिए मेरा पुत्र नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारा कोई भी पुत्र पानी पिलाने तक नहीं रहेगा। उस प्रकार हे कौशल्या, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने स्वामी मुझे शाप दिया कि मेरे अंत में मेरा एक भी पुत्र मेरे पास नहीं रहेगा। अब वो समय आ गया है। स्वामी कौशल्या, स्वामी, अब हमें इस प्रकार छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी।